بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی مجھے میری دادی نے سنائی تھی۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کو یہ کہانی کس نے سنائی تھی، پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سچی کہانی ہے، اور آج میں آپ کو یہ کہانی ایسے ہی سناؤں گی جیسے مجھے میری دادی نے سنائی تھی، جیسے ہی ان کی آپ بیتی ہو۔ یہ کہانی ایک صنوبر نامی لڑکی کی ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام صنوبر ہے اور میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے اور میری امی نے دوسری شادی کر لی۔ میری امی اپنے آپ کو اتنا کمتر اور کمزور سمجھنے لگی کہ اپنے دوسرے شوہر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی۔ مجھ سے سارے گھر کے کام کروائے جاتے اور میری زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی زندگی گزر رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ باپ کا سایہ سر سے چلے جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن تمہارے پاس ماں تو ہے۔ پر یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ میری ماں ہو کر بھی نہیں تھی۔ وہ سارا دن میرے سوتیلے باپ کی خدمت کرتی رہتی، اور جو میرا باپ کہتا وہی ہوتا۔ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اس کے لیے عید کے کپڑے نہیں بنانے، تو میری ماں بھی کہہ دیتی کہ ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ تو کوئی موبائل فون ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون ہوتا تھا اور نہ ہی ٹی وی۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے ہی خوش ہو جاتے تھے، لیکن مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح جو میرے تھوڑے بہت دوست تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ میں نے لوگوں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تو وہاں بھی نہ جاتی، کیونکہ پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے، جبکہ میں بہت اچھا ڈانس کیا کرتی تھی۔ لیکن اب میرے اندر بالکل بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے نہ تو کسی کی خوشی سے خوشی ہوتی اور نہ ہی اپنی خوشی سے۔ اس طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے جب میرا سوتیلا باپ اچانک ایک دن بیمار ہو گیا اور گھر میں چارپائی پر پڑ گیا۔ میری ماں اس کے لیے سب کچھ کرتی تھی، لیکن گھر میں پیسے آنے بھی ضروری تھے، اور پیسے تو وہی لایا کرتا تھا۔ پھر اس نے اپنے کسی دوست سے قرضہ لے لیا اور اپنا علاج کروایا۔ اس نے اتنا قرضہ لیا تھا کہ 6 مہینے تک وہ باہر نہیں نکلا۔ پھر بھی گھر چلتا رہا اور اس کا علاج بھی ہو گیا، لیکن اب یہ قرضہ واپس بھی تو کرنا تھا۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے زیادہ کام نہیں کرنا، چلنا پھرنا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے بہانہ بنا لیا، لیکن قرضہ مانگنے والے تو اب گھر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ وہ کام کیا کریں۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی اور ایک جگہ پر کسی کے گھر میں کام کرنے بھی جاتی تھی، اور میں بھی کام کرنے جایا کرتی تھی، لیکن اس طرح سے قرضہ نہیں اتر رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے میری ماں کو کوئی بات کہی۔ امی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں مان گئی، اور میری امی نے کہا کہ ہم تمہاری شادی کروا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ گھر میں اتنی زیادہ تنگی ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، میرا تو جہیز بھی نہیں بنا ہوا، پھر میری شادی کیسے کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو جہیز نہیں چاہیے، اس زمانے میں جہیز کے بنا تو شادی نہیں ہوتی تھی۔ خیر، میری امی نے مجھے کہہ دیا کہ تم شادی کی تیاری کرو، اور مجھے میری ایک ہمسائی نے بتایا کہ تمہاری شادی کس سے کروا رہے ہیں۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری شادی اسی کے ساتھ کروا رہے تھے جس سے میرے بابا نے قرضہ لیا تھا، اور اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ وہ میرے باپ تو کیا، میرے دادا کی عمر کا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کی پہلے بھی 3 بیویاں بھی تھی، کافی سارے بچے تھے۔ وہ ایک نہایت ہی دل پھینک اور عیاش قسم کا آدمی تھا۔ اس کے علاوہ وہ بد اخلاق بھی تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری سمجھتا تھا۔ غریبوں پر ظلم کرنا اس کا شوق تھا۔ میں اپنی زندگی برباد ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی امی ابو کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ نہ صرف اس نے ہمارا قرضہ معاف کر دیا، بلکہ وہ ہمیں اور بھی بہت سارے پیسے دینے کو تیار ہے۔ اس نے پتہ نہیں صنوبر کو کہاں دیکھ لیا، لیکن وہ تو اس پہ مر مٹا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے تو میں اپنی ساری دولت بھی لٹا سکتا ہوں۔ اگر پہلے ہم صنوبر کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیتے تو ہمیں یہ قرضہ لے کر اتنے زیادہ دن پریشانی میں گزارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنے پیسے تو وہ خوش ہو کر ہی دے دیتا۔ یہ لڑکی تو سونے کی چڑیا نکلی۔ وہ ساری زندگی ہمارا خیال رکھے گا، ہر مہینے ہمیں پیسے دیا کرے گا، ہمارے گھر راشن پہنچ جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی ہم اسے جو مانگے وہ ہمیں دے گا۔
तेरी बेटी भी राज करेगी। मेरी माँ उन बातों से खुश नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस बात पर खुश हो गई कि मेरी बेटी राज करेगी। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी माँ का रवैया मैंने देख लिया था। मेरी माँ तो उसकी हर बात पर लब्बैक कहती थी। उससे बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा कि तुम राज करोगी, पैसा ही सब कुछ होता है, हमेशा खुश रहोगी वहाँ पर, और कौन सा सारी जिंदगी जिंदा रहेगा, उसके बाद सारा कुछ तुम्हारा ही होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं उस घर से भाग जाऊं और दूसरे गांव चली जाऊं जहां पर मेरे मामू रहते थे। मैं बहुत छोटी थी जब अपने मामू के घर गई थी, और मुझे रास्तों का भी ठीक से नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि वो किस गांव में रहते और उनका नाम भी पता था। सोचा कि किसी तरह उस गांव में पहुंच जाती तो शायद उनके घर भी पहुंच जाती। वो मुझे देखते ही फौरन अपनी पनाह में लेते और उसके बाद मुझे किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे यही करना है। इस घर से भागना मेरे लिए बहुत आसान था। मेरी माँ और सौतेला बाप रात होते ही अपने कमरे में जाते, मैं अकेली ही सोया करती। मैं चुपचाप थोड़ा बहुत सामान उठाकर घर से बाहर निकल आई, लेकिन जब स्टेशन पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा बाप मुझे ढूंढता हुआ वहां तक आ चुका था। मैं भाग उठी, गलती से किसी और ट्रेन में बैठ गई। जिसमें बैठना था उसमें ना बैठ सकी क्योंकि मुझे भागना था, वो ट्रेन भी जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी बैठी और वहां से भाग गई, लेकिन ये ट्रेन कहाँ जा रही थी मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि रात का वक्त था और उस ट्रेन में बहुत थोड़े लोग थे। मैंने अपने आप को काली चादर में छुपाया हुआ था। जब मैंने देखा कि मेरे सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा है, उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने कहा, बड़ी घबराई हुई लग रही हो। मैंने कहा, तुमसे मतलब, तुम्हें क्या, मैं घबराई हूँ या नहीं? उसने कहा कि लगता है घर से भाग कर आई हो, जिस तरह से डर रही हो, बार बार पीछे देख रही हो। वो बोल रहा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी सब्ज आंखें दिखाई दे रही थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अजीब थी। मैंने कहा कि मैं घर से भागकर नहीं आई, मैं अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ। मैंने खुद को संभाल कर बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उसने मेरी बात का यकीन किया होगा। बहरहाल मुझे इससे क्या था। उसने कहा कि जो लोग घर से भाग कर आते हैं इसी तरह परेशान होते हैं, बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने आप को चादर में छुपाते हैं। मैंने कहा कि तुम भी तो अपने आप को चादर में छुपा कर बैठी हो, तो क्या तुम भी कहीं से भाग कर आए हो? उसने कहा कि मैं कहीं से भाग कर नहीं आया, पर कुछ लोगों से छुप रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये इंसान बिला वजह मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा है। मैं अकेली हूँ, इसको पता है। अकेली लड़की को देखकर सब उसका शिकार करना चाहते हैं, ये मुझे फंसाना चाहता है। मैंने कहा कि अपने काम से काम रखो, अगले स्टेशन पर मेरा बाप मुझे लेने के लिए खड़ा है, वो मेरे साथ आ जाएगा। इस बात पर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में कोई तंज तो नहीं था, लेकिन वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसने कहा कि तुम ये दुआ नहीं करो कि तुम्हारा बाप तुम्हें लेने आ जाए, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गई। क्या इसे पता चल गया था कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है? इस बात का क्या मतलब था कि मेरा बाप मुझे लेने आ गया, तो इसका मतलब मुझे मेरी मौत लेने आ गई है। मुझे उस इंसान से डर लगने लगा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गहराई थी। उसके साथ मैं बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन और कहीं बैठने की मुनासिब जगह भी नहीं थी। ट्रेन में कुछ ही लोग बैठे थे, जिसमें से एक बूढ़े अंकल आंटी बैठे थे और कुछ और आदमी जो अकेले ही बैठे थे। उस बूढ़ी औरत के अलावा उस डब्बे में कोई औरत नहीं थी। मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। सफ़र इसी तरह चल रहा था और मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद टिकट चेक करने वाला भी आ जाएगा, और जब मेरे पास टिकट नहीं होगी तो उसके सामने मेरी मज़ीद बेइज्जती हो जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और घर से भाग कर आई हूँ। फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं किसी अजनबी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मैं उसकी नज़रों से बचने के लिए उठकर बाथरूम चली गई। वो बार बार मुझे घूर रहा था, लेकिन जब वापस आई तो वो जगह पर नहीं बैठा था, पर ट्रेन तो चल रही थी। फिर वो कहाँ चला गया
मुझे लगा कि शायद उठकर कहीं और चला गया होगा, इसलिए मैंने भी शुक्र का सांस लिया और वहीं पर बैठी रही। मेरे पास टिकट नहीं था। ये ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैं भी उतर गई। बहरहाल मुझे इतना ज़रूर पता था कि उसके बाद आखिरी स्टेशन पर ट्रेन ने रुक जाना है, इसलिए मैं पहले ही उतर गई। ये कौन सा इलाका था, मुझे कुछ पता नहीं था। एक बूढ़े आदमी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उसने किसी ऐसे इलाके का नाम लिया जिसका मैंने आज तक नाम नहीं सुना था। ये मैं कहाँ आ गई थी? अब मैं क्या करती? मैं सुबह के 1 बजे से सफ़र में थी और अभी फिर से शाम होने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। आंखों में आंसू थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। एक जगह पर बैठ गई तो कुछ लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। फिर मैंने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते मुझे एक पानी का नलका नज़र आया तो मैंने पानी पी लिया। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन मैं वो पैसे खर्च करना नहीं चाहती थी। चलते चलते ऐसे लगने लगा जैसे आबादी ख़त्म हो गई है और जंगल के रास्ते आ गए हैं। यहाँ पर तो कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। पहले मुझे एक घर नज़र आया, सोचा कि यहाँ जाकर उनसे मदद मांगती हूँ, थोड़ी बहुत मदद तो मेरी कर ही देंगे। हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो, ये लोग मेरी मदद कर दें। लेकिन मैं डर गई और मैंने कहा कि हो सकता है इस घर में कुछ गलत हो जाए। मैं आगे चल पड़ी। मुझे कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मुझे कोई घर नज़र आ जाए और अंधेरा होने से पहले मैं उनको कहूँ कि बस मुझे एक रात की पनाह दे दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो कोई घर नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरा होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं कभी ज़िंदगी में घर से बाहर नहीं निकली थी और अब वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे जाते हुए देख लिया। अभी तक तो सारे गांव को पता चल गया था कि मैं भाग गई हूँ और न जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही थी। मैं ये सब कुछ सोचना नहीं चाहती थी। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी और इज्जत बचानी थी। मुझे दूर से एक बहुत बड़ा घर नज़र आया। ये घर सिर्फ घर नहीं बल्कि एक महल था। मुझे नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता था। शायद ये बंद था और शायद यहाँ कोई नहीं रहता था। लेकिन रात गुजारने के लिए एक छत थी, इसीलिए मैं उसकी तरफ चली गई। अंधेरा होने की वजह से मुझे रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा था और मुझे नहीं लगता था कि उस महल की तरफ जाने वाले रास्ते को कभी किसी ने साफ किया होगा। यही वजह है कि मेरे पाँव में बहुत ज़ोर से कांटा लग गया, लेकिन फिर भी मुझे चलना तो था। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने हल्का सा जोर लगाया तो पूरा खुल गया और मैं अंदर दाखिल हो गई। उस महल को ऐसा बनाया गया था कि यहाँ पर रोशनी आ रही थी। ये रोशनी चांद की थी जो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी होकर उसके बीचों बीच आ रही थी। ये शायद उस ज़माने में बनाया गया था जब बिजली का कोई ख्याल नहीं होता था और लोग ऐसे घर बनाते थे जो रात और दिन दोनों में रोशन रहे। उसके पीछे एक बहुत ही मुश्किल टेक्निक हुआ करती थी, लेकिन ये उस ज़माने के लोग ही करते थे। रोशनी में मुझे नज़र आया कि सिर्फ एक कांटा नहीं लगा था, मेरे दोनों पैरों में न जाने कितनी खराशें लगी थी, क्योंकि मैं जहाड़ियों के अंदर से गुजर कर आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि जब इंसान अपने ज़ख्म देख लेता है तो उसे ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैं अपने पाँव पकड़कर बैठ गई और ऐसी जगह बैठी जहाँ पर रोशनी पड़ रही थी। मुझे अभी भी डर लग रहा था, लेकिन अब तो मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था कि अब मुझे डर नहीं लगता था। डर लग रहा था तो मुझे इस माशरे से कम कम यहाँ कोई था तो नहीं। और पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था कि वहाँ बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो खिड़कियों से रोशनी अंदर आ रही थी और मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। ये वाकई एक महल था जो बहुत खूबसूरत था, बस थोड़ा गंदा हो चुका था। शायद यहाँ पर कोई नहीं आता था। हो सकता है जब आज़ादी होती तो यहाँ पर रहने वाले इसको ऐसे ही छोड़कर भाग गए थे, और क्योंकि ये शहर से बहुत दूर था इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता था। मैं यही सब देख रही थी। मैंने पूरा महल देखा, लेकिन चलने की वजह से मेरे पाँव में दर्द हो गया था, क्योंकि पहले ही मेरे पैरों पर जख्म लगे हुए थे। जब मैं वापस उस जगह पर आई जहाँ बैठी थी तो सामने का मंजर देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई थी जो पहले बिल्कुल नहीं थी और अभी भी नहीं हो सकती थी। क्या मुझे वहम हो रहा था? मैंने सामने देखा तो यहाँ पट्टी का सामान पड़ा था। मैं हैरान रह गई और उसको देखने लगी। इस महल के अंदर कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि अभी मैं सारा महल देख कर आई थी।
मुझे तो किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। फिर ये सब कुछ क्या था? मैंने उस सामान को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल असली था, ये मेरा वहम नहीं था। मैंने वहाँ बैठकर अपने जख्मों पर पट्टी कर ली और मुझे काफ़ी सुकून आ गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आज मुझे मेरे बाबा बहुत याद आ रहे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हर जुम्मे वाले दिन मुझे अपने साथ बाज़ार ले जाते और मैं जिस चीज़ पर हाथ रखती मुझे ले देते। इसके अलावा मुझे बहुत मज़ेदार किस्म का हलवा खिलाया करते जो सिर्फ हमारे गांव में ही मिलता था। उसको शायद मूंग की दाल के साथ बनाया जाता था, लेकिन ये बहुत अच्छा होता और उसके साथ सब्ज़ चाय भी मिलती। मेरे बाबा कहते थे कि जितना खाना है तू खा, मेरी बच्ची, ये सब कुछ तेरे लिए है। आज मुझे वो सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने बाबा के साथ गुजारे थे, क्योंकि उन्हीं पलों में मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद तो खुशी क्या होती है ये मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं भी अपने घुटनों में सर रखकर रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन जब गर्दन उठाई तो सामने देखकर हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वही हलवा और सब्ज़ चाय पड़ी थी। अगर इस महल में कोई था और मेरी मदद करने के लिए ये सब कुछ रख रहा था, तो उसे कैसे पता था कि इस टाइम मेरा यही खाने का दिल कर रहा था? ये तो सिर्फ मेरे गांव में ही मिलता था, और मेरा गांव तो यहाँ से इतना दूर था कि मुझे यहाँ आने में एक दिन लग गया था। तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं बहुत डर गई और डर से ज़्यादा मेरे ऊपर एक अजीब किस्म की कैफियत तारी हो गई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उस हलवे को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ताज़ा था और उसमें से अभी भी धुआं उठ रहा था। उसकी खुशबू ने मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैंने दोनों हाथों से हलवा खाना शुरू कर दिया। ये तो शायद मैंने 8-9 साल से नहीं खाया था, और 2 दिन से तो मैंने रोटी भी नहीं खाई थी। मैंने पूरा हलवा भी खा लिया और चाय भी पी ली। मेरे दिल को सुकून आ गया। कहते हैं कि दुख इंसान को मार देते हैं, मुश्किल इंसान को जलील कर देती है। इंसान माशरे के हाथों ख्वार हो जाता है और लोगों की बातें उसे जीने नहीं देती, लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बुरी तरह से परेशान कर देती है और उसको जीने नहीं देती, और वो है भूख। भूख से ज़्यादा बड़ा अजाब इस दुनिया में और कोई नहीं है। खाली पेट से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं होती। इंसान को जब भूख लगती है तो उसे पता चलता है कि ये क्या बला है। उसी भूख से बचने के लिए तो वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, अपने बच्चों का पेट भरता है और अपना भी। मेरे दिल को सुकून आ गया। मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आ गई और मैं सो गई। नींद में जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई बैठा हुआ नजर आया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये तो वही आदमी था जो मुझे ट्रेन में मिला था। अभी भी उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मुझे सिर्फ उसकी आंखें नजर आई थी। मैं अचानक से उठ बैठी, अपनी आंखें मलती हुई उसकी तरफ मुतवज्जे हुई तो वो मेरे सामने नहीं था। शायद मैं नींद में थी और मुझे वहम हुआ था वो वहां पर था ही नहीं। शायद वो आखिरी आदमी था जिसको मैंने गौर से देखा था, इसीलिए उसका एक्स मेरी आंखों में था और मुझे नींद में ऐसे लगा कि वो मेरे सामने बैठा है। लेकिन यह एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे हकीकत हो। लेकिन वो यहाँ पर कैसे हो सकता था? मैं हैरान थी कि दिन ही नहीं गुजर रहा था। मैंने सारा महल देख लिया। मैं एक दफ़ा सोकर उठ गई। मैंने खाना भी खा लिया, लेकिन अभी तक बाहर रोशनी थी। उस महल में कोई न कोई गड़बड़ थी। क्या मुझे यहाँ पर रात के लिए रुक जाना चाहिए था? अगर इतनी ही रोशनी थी तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे रास्ते याद थे, ना आगे का कोई घर था और ना ही पीछे। और मैं क्या सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार देती? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, पर समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख फिर से लगी और जब आँख खुली तो एक दफ़ा तो सामने का मंजर देखकर मैं भाग गई, जबकि मुझे भागना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा भागी कि पलट कर नहीं देखा। पर भागते भागते जब सड़क पर पहुंची तो सूरज की तरफ देखा जो कि गुरूब हो रहा था और आगे पीछे कुछ भी नहीं था। मुझे वापस आना पड़ा और आकर उसी जगह बैठ गई। मेरी आंखों के सामने जो उस वक्त चीज़ें पड़ी थी वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे सामने उस टाइम 15 से 20 किस्म के खाने पड़े थे, जिसमें 4 किस्म के चावल, बिरयानी, पुलाव, कीमे वाला पुलाव और सफ़ेद चावल पड़े हुए थे।
اس کے علاوہ سالن میں گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت، بھنا ہوا گوشت، دالیں، سبزیاں، میٹھے میں پھر سے حلوہ، کھیر، روٹیاں، نہ جانے کیا کچھ تھا، اور شربت بھی۔ ایسے کھانے کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو سب سے اچھا کھانا وہی ہوتا جو کسی کی شادی پر بنتا تھا، کیونکہ سارے گاؤں کو بلایا جاتا تھا۔ اس میں بھی چاول، گوشت اور زیادہ سے زیادہ حلوہ ہوتا، لیکن یہاں پر اتنی ساری چیزیں پڑی تھی، یہ بھی ممکن تھا کہ کسی نے یہاں پر پٹی کا سامان رکھ دیا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو حلوہ میرے گاؤں میں ملتا تھا اس کے ساتھ کا یہ حلوہ کسی نے یہاں رکھ دیا ہو۔ لیکن اتنے سارے کھانے کہاں سے آ سکتے تھے؟ یا تو یہ کسی ہوٹل سے آ سکتے تھے یا کوئی بنا سکتا تھا۔ ان دونوں باتوں میں سے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کھانا بالکل گرم تھا۔ جب سے ادھر آئی تھی مجھے بھوک زیادہ لگ رہی تھی۔ مجھے کھانے کو دیکھ کر مزید بھوک لگ گئی تھی اور میں بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور میں نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا۔ یہ کھانا ایسا تھا کہ جتنا مرضی کھا لو پیٹ نہیں بھرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ کھایا ہی نہیں ہے۔ نہ تو مرچیں لگ رہی تھی اور نہ ہی اندر سے آواز آ رہی تھی کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھا لیا اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا اور بلند آواز میں کہا کہ کون ہے یہاں پر، لیکن جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہی کر سکتی تھی کہ پوچھتی کہ وہاں پر کون ہے، کیونکہ جو کوئی بھی تھا ابھی تک تو میری مدد ہی کر رہا تھا، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے میرے زخموں پر لگانے کے لیے پٹی کا انتظام کیا اور میرے لیے اتنا شاندار کھانا بھی رکھا۔ اس کے علاوہ یہ بات میں کیسے بھول سکتی تھی کہ جب میں یہاں پر آئی تو یہاں اندھیرا تھا، لیکن اب یہاں پر روشنی تھی۔ جیسے ہی رات ہو رہی تھی آس پاس روشنی تھی، جیسے کہ یہ روشنی کا انتظام بھی میرے لیے ہی کیا گیا ہو۔ اس محل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا دیوان بھی پڑا ہوا تھا، میں اس کے اوپر سو بھی سکتی تھی، اور میں اسی کے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے یہاں پانی کا انتظام بھی ہو چکا تھا، کوئی تو تھا جو میری مدد کر رہا تھا، لیکن وہ یہ سب کچھ کیسے کر رہا تھا؟ جانے کیوں ٹرین والا آدمی بار بار میرے دماغ میں آ رہا تھا۔ وہ کافی عجیب تھا، اس نے پتہ نہیں اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا تھا، اور وہ اچانک ہی ٹرین سے کہیں غائب بھی ہو گیا۔ اور اس محل میں بھی آ کر میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کا اپنا وہم سمجھا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسی دیوان پر پڑے ہوئے سو گئی، اور میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں اسی دیوان پر سو رہی ہوں جب میرے بابا میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے پیار سے جگایا۔ میں نے ان کو دیکھا تو فوراً ان کے گلے لگ گئی اور بری طرح سے رونا شروع کر دیا کہ بابا کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں ان کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا تھا، اچھا ہوا کہ تم وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے کہا کہ وہاں سے تو میں آ گئی، پر اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بابا کا کہنا تھا کہ دیکھو مجھے تمہیں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، اور میں تمہیں اسی طرح بتا سکتا تھا، پہلے مجھے بتانے کا موقع نہیں ملا، بس تم یقین کرنا کہ جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کا یقین کر لینا، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ مجھے میرے بابا کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس میں اس بات پر حیران تھی کہ میرے پاس وہ ہے اور میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روتے روتے سو گئی۔ کبھی ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتی، کبھی اسے آنکھوں سے لگاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل اکیلی نہیں ہو، تمہیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ تم اکیلی نہیں ہو اور تم اکیلی رہو گی بھی نہیں۔ میں تمہیں ایسی جگہ تھوڑی چھوڑ کر جاتا، بس میں مجبور تھا، مجھے کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں صرف 5 منٹ سوئی ہوں، اور یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ خواب تھا۔ میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ جب سے میرے بابا اس دنیا سے گئے تھے اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک مجھے خواب میں نہیں آئے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کسی دن خواب میں ہی آ جائیں، میں خواب میں ان سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر لوں، ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں اور خواب میں ہی ان کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ آج ان کو خواب میں دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے ان سے مل کر آئی ہوں۔
मेरे हाथों से अभी तक उनकी खुशबू आ रही थी। मैं बार बार इस बात पर रो रही थी। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए था। मेरा यहाँ कोई काम नहीं था, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती थी। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा बंद हो गया। ये दरवाज़ा इतना खस्ता हाल था कि मैंने उसको हल्की सी लाइट मारी तो ये खुल गया, लेकिन अब ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने परेशान होना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो भी मेरी मदद कर रहा था वो मुझसे इस मदद का कोई बदला तो नहीं लेना चाहता। वो मुझसे बदले में कुछ चाहता तो नहीं था जो वो मुझे जाने नहीं दे रहा। मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे जाना है, यहाँ से मुझे जाना है। मैं दरवाजे की तरफ पलटी तो अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे उसकी सांसों की आवाज़ आ रही थी। वाकई कोई मेरे पीछे खड़ा था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी आदमी की आवाज़ थी। मैं बहुत डर रही थी। मैं पीछे पलट कर देखना नहीं चाहती थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं चाहती थी कि ये कोई ख्वाब और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन यह ख्वाब नहीं था। उसने कहा कि मेरी तरफ देखो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो ये वही शख्स था जो ट्रेन में मेरे सामने बैठा था। अब उसके चेहरे से नकाब हटा हुआ था। ये एक लड़का था। उसकी आंखें सब्ज थी और शायद ये 25 या 30 साल का होगा। बड़ा ही संजीदा अंदाज में मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा कि तुम तो ट्रेन में थे। उसने कहा कि मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं थे, तुम मेरे साथ कैसे हो सकते हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही था, क्योंकि मैं इंसान नहीं एक जिनज़ादा हूँ और ये मेरा घर है। मैं न जाने कितने सालों से यहीं पर रहता आया हूँ, लेकिन कभी कभी सैर करने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। तुम्हारी मदद मैं ही कर रहा था। मैंने तुम्हें पहचान लिया था और तुम्हारे बाप को भी देख लिया था। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी तुम्हारी मदद करने की। तुम्हारे बाबा रेलवे में काम करते थे। मैं अक्सर आता जाता था। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनको देखता और वो मेरे ख्वाब में आते थे। उन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाया जो मुझे पूरा करना है, जिसमें तुम्हारा फ़ायदा है। इसीलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खुद यहाँ से ले जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे लगा कि ये कोई इंसान है जो मुझसे झूठ बोल रहा है और मुझे अपनी बातों में लगा रहा है। वैसे भी ये एक नौजवान लड़का था। मुझे इसके साथ यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। उसने कहा कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मैं खुद ही अपनी बातों में उलझी हुई थी। मैंने कहा कि वो सब कुछ एक इंसान भी कर सकता है और मैं तुम्हारे साथ यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। मुझे मेरे मामू के घर जाना है। उसने कहा कि लेकिन तुम अपने मामू के घर से कितनी दूर आ गई हो? इस बात का अंदाज़ा है? यूँ समझो कि वो इस वक्त दूसरे कोने में और तुम दूसरे कोने में। तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम्हें रास्ता भी नहीं मालूम, तो वहाँ कैसे जाओगी? और तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें वहाँ तलाश नहीं किया होगा? अगर तुम वहाँ पर रही और तुम्हारा सौतेला बाप घर आ गया और फिर उसने कहा कि ये तो मेरी बेटी है और इस पर मेरा हक है, तो फिर तुम्हारा मामू क्या करेगा? मैंने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं, सारी ज़िंदगी इस महल में रह जाऊं? वो इस बात पर हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी उम्र का कोई नौजवान लड़का नहीं हूँ। मेरी उम्र तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। मैं तुम्हारे रूप में इसलिए इस सामने आया कि तुम ज़्यादा डरो नहीं। अभी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा जो तुम्हारी मंजिल है, लेकिन वो तुम्हारे मामू का घर नहीं है। मुझे अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। मैंने कहा कि तुम मेरी मदद करने की बात करते हो और फिर कहते हो कि मुझे मेरे मामू के घर भी नहीं लेकर जाओगे। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। मेरी किस्मत में जहाँ मर्जी चली जाऊँ। वैसे भी मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। वो आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे। मैं उसको कह रही थी कि मुझे यहाँ से जाने दे, और मेरा मतलब ये था कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वो मेरी किसी बात को संजीदा नहीं ले रहा था। फिर उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये चीज़ तो मेरे बाबा की थी। ये अंगूठी हमेशा मेरे बाबा के हाथ में होती। मैंने कहा कि तुम्हारे पास कैसे आई?
اس نے کہا کہ تم اپنے پاس رکھ سکتی ہو کیونکہ یہ تمہارے باپ کی آخری نشانی ہے، اسی نے مجھے دی تھی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے میرے ذمے ایک کام لگایا تھا اور مجھے وہ پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور مجھے قید کر دیا گیا تھا۔ 7 سال تک میں قید میں تھا اور جس دن آزاد ہوا اسی دن تم مجھے ٹرین میں نظر آ گئی۔ یہ سب کچھ قسمت میں لکھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میری غلطی کی وجہ سے تمہیں 7 سال تک ایسی زندگی گزارنی پڑی جس کی تم حقدار نہیں تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، تمہاری ضرورت کی کچھ چیزیں رکھیے، تم تیار ہو جاؤ، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں نہیں جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ، یہاں مجھے مجبور مت کرو۔ میں تمہیں اپنی مرضی سے اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے جاؤ اور جا کر جو کہا ہے وہ کرو۔ مجھے اس کی باتوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ میں سامنے والے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں میرے لیے کچھ کپڑے، جوتے وغیرہ رکھے گئے تھے، اور کیونکہ یہ کپڑے تو میں نے 2-3 دن سے پہنے تھے، مجھے سردی لگ رہی تھی تو میں نے ایک چادر بھی لی۔ میں نے کپڑے بدلے اور خود کو چادر میں لپیٹ لیا، اپنے آپ کو تھوڑا صاف کیا۔ اس کے بعد میں باہر آ گئی اور ہم وہاں سے جا رہے تھے۔ اسے سارے راستوں کا پتہ تھا۔ ہم وہاں سے چلتے ہوئے نکلے اور ایک رکشے میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ تم میرے بابا کو جانتے تھے؟ یہ بات تو مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن وہ تمہیں کیسے جانتے تھے؟ انہوں نے تمہیں یہ کام کیوں دیا؟ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ منزل پر پہنچ جائیں گے تو تمہیں سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ ابھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو کیونکہ میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ سفر جاری تھا۔ میرے ماموں کے گاؤں کا نام راستے میں نظر آیا، لیکن ہم اس گاؤں پر رکے نہیں۔ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے میری منزل تک لے جا رہا ہے، لیکن وہ منزل میرے ماموں کا گھر نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ شہر جا رہے تھے۔ ہم نے پھر سے ٹرین بدلی اور ہم لوگ شہر آ گئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ شہر آئی تھی۔ میں نے شہر کو دیکھا تو میں حیران ہو رہی تھی۔ جیسے شہر کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی تھا۔ یہاں پر تو کافی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بہت بڑے سے بنگلے کے سامنے رک گئے اور اس بنگلے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو اس انسان کو فوراً پہچان گیا اور اس نے مجھے بھی شفقت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی بہت دیر کر دی اپنے گھر آنے میں۔ میں نے کہا کہ میرا گھر؟ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ میرا گھر کیسے ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کمرے میں میرے بابا کی تصویر لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک آدمی آیا جس کی عمر میرے جتنی تھی۔ اس نے جنزادے کو سلام کیا، لیکن بس میری طرف ایک نظر دیکھا۔ میں نے بھی سلام نہیں کیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ وہ اس کو سائڈ پر لے گیا اور کوئی بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک عورت بھی آ گئی جس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شربت بھی پلایا۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارا باپ میرے شوہر کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھائی کیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں اس نے تمہارا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا، لیکن اس وقت میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور تم بھی چھوٹی تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم کچھ سالوں بعد شادی کر لیں گے۔ لیکن پھر تمہارے بابا اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں ان تک پہنچنے کا کوئی رابطہ نہیں ملا۔ ایک دفعہ ایک انور نامی آدمی سے بات ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ تمہارا باپ وہاں نہیں رہتا۔ انور تو میرے سوتیلے باپ کا نام تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ کسی طرح میرے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو جائے۔ تمہارا باپ تو بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی قابل، ایماندار۔ ایک دفعہ تو اس نے میرے شوہر کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس دن سے ہی میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل لیں گے، لیکن پھر تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم اسے ڈھونڈتے ہی رہ گئے، پر 3 دن پہلے ہمیں خط ملا کہ تمہارا پتہ چل گیا اور تم ہمارے پاس آ رہی ہو۔ ہم صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹی یہ جو ابھی لڑکا یہاں سے گیا، اس کا نام کاشف ہے، یہ تمہارا منگیتر ہے جس کو تمہارے باپ نے تمہارے لیے چنا تھا، اور اسی کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کروائیں گے۔ اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کوئی بیٹی نہیں دی، اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہے تو تم بتا سکتی ہو، کیونکہ تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ اس ٹائم دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، اس لیے ہم نے مل کر فیصلہ کیا تھا، پر
तुम मेरे बेटे को पसंद आ गई हो। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उनके गले लग गई। मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बाबा ने जाते जाते मेरी ज़िंदगी संवार दी थी। लेकिन वाकई मैंने बहुत बुरा वक्त गुजारा। मैंने उनको सारी बात बताई कि मैं भाग कर आई हूँ और वो मेरी शादी एक बूढ़े इंसान से करवा रहे थे। उस औरत का कहना था कि अब उन लोगों को भूल जाओ, वो कभी तुम्हें तलाश नहीं कर पाएंगे। इस सब को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, ये समझो कि नई जिंदगी शुरू हुई है। ऐसा ही था। उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दिया और उसके बाद शादी की तैयारी होने लगी। 2 दिन बाद जुम्मा था। जुम्मे वाले दिन हमारा निकाह हो गया। काशिफ बहुत अच्छा इंसान था, उसके साथ मैं बहुत खुश थी। वो जिन ज़्यादा मेरे शोहर के हवाले करके मुझे चला गया। उसने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई थी क्योंकि उसके लिए मैं एक 14 साल बच्चा था जो स्टेशन पर कोई चीज़ बेचा करता था। वो हमेशा मेरी मदद करता था, लेकिन जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा रहा था तो उसने मेरी ही बाजू में आखिरी सांस लिया था। मैंने उसे अपनी हकीकत बता दी थी। उसके बाद उसने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन फिर मैं खुद ही कैद हो गया तो तुम्हारी मदद कैसे करता। बस यूँ समझो कि तुम्हारी मदद तुम्हारे आसपास ही थी जो अब तुम तक पहुँच गई है। अब ये तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, हमेशा खुश रहना। मैंने तुम्हारे बाप से किया हुआ वादा निभा दिया। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और वहाँ से चला गया। मैंने कहा कि मैं कभी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आपने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया। अगर मैं किसी और के हाथ लग जाती या आपकी बात का यकीन न करती और वहाँ से भाग जाती तो मेरी ज़िंदगी क्या होती। उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैंने कहा कि अगर कभी मुझे आपसे मिलना हो तो। उसने कहा कि उसी महल में आ जाना और मुझसे मिल लेना। वैसे भी वो महल बहुत खूबसूरत था। मैं उसकी बात पर मुस्कुराती। उसने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना कि मैं एक जिन्नज़ादा था। मैंने कहा कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैं काशिफ के साथ ही रहने लगी और मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। इस घर में सब कुछ है, ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि उसने इन सब लोगों पर जादू कर दिया है। ये मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं। कभी मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर मैं किसी को अपने बारे में बताती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। इतना खुश तो इस दुनिया में कोई नहीं होता जितनी मैं खुश थी। एक दिन अपने शोहर को कहा कि एक जगह है जहाँ पर पुराना सा महल है, वहाँ जाना चाहती हूँ। उसने फ़ौरन ये बात मान ली। मैं उस जिनजादे से मिलना चाहती थी। अब मेरा एक बेटा भी था और हम लोग वहाँ पर गए। एन उसी जगह पहुँच गए, लेकिन वहाँ कोई महल नज़र नहीं आ रहा था। मेरे शोहर ने कहा कि तुम्हें यकीन है कि महल यहाँ पर था? मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने बाबा के साथ एक दफ़ा यहाँ पर आई थी। मैंने झूठ बोला था, लेकिन मैं हैरान थी कि ये महल तो नहीं था। फिर एक इंसान वहाँ से हमें गुजरते हुए मिला। मेरे शौहर ने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई महल हुआ करता था। उसने कहा कि सुना तो था कि यहाँ पर कोई महल होता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, हमने तो नहीं देखा। हाँ, बातें और कहानियाँ ज़रूर सुनी है कि एक पुराना सा बादशाह था जिसने शहर और गांव की ज़िंदगी से दूर इस जंगल में एक बहुत खूबसूरत महल बनाया था। लेकिन वो महल ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। उसे सब ख्वाबों का महल कहते थे कि जो उस महल में जाता उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग आते हैं उसे तलाश करने के लिए, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा या तुमने कोई और जगह देखी होगी। मैंने कहा कि हाँ, और हमने वापसी की राह ली। मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ये सोचती जा रही थी कि मैंने वो महल देखा है। वो वाकई ख्वाबों का महल था। मैं वहाँ पर एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वहाँ से निकली तो मेरे पास सब कुछ था। मेरा शौहर, घर और माँ बाप जैसे सास ससुर, और आज मेरे पास एक प्यारा सा बेटा भी था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है जिसे मैं हमेशा लोगों को सुनाया करूँगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर आपके साथ भी कभी भी कुछ बुरा नहीं होता।
ہو سکتا ہے کہ میری اس بات پر کچھ لوگ یقین کریں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات پر یقین نہ بھی کریں، لیکن اس کہانی میں جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر یقین ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔